Good morning, students. So here beta exercise 8.1, chapter name is ratio and proportion. It's given on page number 126. And beta question number 1, to find the ratio in the lowest term you have understood in the previous video. Now here question number 2. These are word problems beta. So these are very easy. So let's see question number 2. Divide rupees 1080 among A and B in the ratio 5:7. Mean to say you have to divide 1080 rupees among A and B. Means A और B के बीच में आपको शेयर करनी है और डिवाइड करनी है मनी, और जिसमें A का रेशियो है 5 एंड B का रेशियो है 7. सो वेरी सिंपल बेटा, what we do in this type of sums? First of all beta, we write whatever is given in the question, that A and B's ratio is 5 equal to 5:7. So after this beta, the second step is to find the sum of the ratios. So here you write sum of the ratio is equal to 5 plus 7 equal to 12. Now beta, according to the question, whosever ratio is given or whosever share is to be find beta, we write. So first is beta A share. So A share equal to, now here one thing is that कि आपको देखना है कि A का रेशियो क्या है. तो आप देख सकते हैं बेटा कि A का रेशियो है यहाँ पे 5. ओके, एंड वी विल राइट हियर 5/12 एंड मल्टीप्लाई विद वॉट एवर टोटल मनी इज गिवन. फिर से समझिए आप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, आफ्टर फाइंडिंग द सम ऑफ द रेशियोज वी फाइंड द शेयर ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स. जो भी पर्सन्स दिए होते हैं उनका हम शेयर फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे ए का शेयर बेटा हम लिखेंगे. अब फाइंड कैसे करना है, जितना रेशियो होता है उसको लिखेंगे ना, अपॉन में हम सम ऑफ द रेशियो लिख देते हैं. सो लेट्स सी बेटा, ए शेयर इक्वल टू 5/12. 12 इज द सम ऑफ द रेशियोज एंड मल्टीप्लाई विद द टोटल मनी. नाउ बेटा divide it. So 12 1 12 and 12 9 108 and 0 is left, so 90 times. Now after all beta, 5 multiply 90. So here is 5 multiply 90 is 450 rupees. So that is mean कि A share is 450 rupees. Now B share equal to what is beta? Very simple. अब आप देख सकते हैं कि रेशियो B is 7. ठीक है ना. So we will write here 7/12. Rest of the things beta will be same, only ratio is changed. So here beta ratio of B is 7. So we will write 7/12 multiply 1080. Now same to same, 12 1 12 and 12 9 108 and 0. So 90 times. Now multiply 7 multiply 90. 7 9 63 and 0. So rupees is beta rupees 630. Now beta, to check your answer you can find the sum of the following shares also. अगर हमें आंसर चेक करना है कि ये इट इज़ ट्रू और फॉल्स और इट इज़ राइट और रॉन्ग, सो बेटा वी कैन फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑल्सो. हम 450 और 630 का सम फाइंड करते हैं. इफ़ द सम कम्स इक्वल टू टोटल मनी, सो इट इज़ करेक्ट. आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 1080 आएगा, दैट इज़ मीन इट इज़ करेक्ट. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर सेम टू सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, यू हैव टू डू योर सेल्फ. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5. Divide 20 bananas among John, Rahul and Jafar in the ratio of 2:2:1. Mean to say कि आपको 20 बनानास 3 पर्सनस में डिवाइड करने हैं, जॉन, राहुल और जफर में, जिनका रेशियो है 2:2:1. मीन टू से कि आपको इन शेयर में डिवाइड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कैसे करेंगे, हम लिखेंगे जॉन, राहुल एंड जफर्स रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1. ओके. After that beta second step is sum of the ratio is equal to 2 plus 2 plus 1. So ये 5 आ जाता है. अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या है, वी फाइंड द शेयर ऑफ द पर्सन्स. सो जॉन्स शेयर इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि जॉन का रेशियो क्या है 2 है, तो वही सिंपल 2/5 लिख देंगे. 5 कहाँ से आया, जो सम ऑफ द रेशियो निकलता है, तो 2/5 मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ थिंग्स. So beta here 20 bananas. So 5 in 5, 5 4 20. So 2 4 8 bananas. That is mean John will get 8 bananas. All right. Now here beta Rahul's share.
सो वेरी सिंपल, राहुल का शेयर रेशियो क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे 2/5। जो अपॉन में 5 है ये हर एक स्टेप में रहेगा, इट इज़ द सम ऑफ द रेशियोज एंड मल्टीप्लाई 20 विल बी इन ऑल स्टेप्स बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ बनानाज. So 5 in 5, 5 4 20. So finally 2 4 8 bananas comes. So Rahul also get 8 bananas. Now after Jaffar's share comes, and Jaffar's share equal to, so Jaffar's ratio is 1, you can see here. So 1/5 multiply 20. So 5 in 5, 5 4 20, that is mean 4 in 4 bananas. Okay, now if you find the share sum, so you will get only 20. You can see here 8 bananas, 8 bananas and 4 bananas. So total 20 bananas. That is means it is correct answer. Now beta question number 5 is done. Then comes question number 6. That is you will do yourself because that is same to same beta. Now question number 7. Here something different but very easy. So beta So here beta question number 7 is given in the book. That is the question you have to write yourself. Now directly I solved here. So see, monthly income of Sri Prasad is equal to rupees 18,200 and he spends in a month rupees 11,700. एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि जब एक पर्सन 18,000 रुपीज़ कमाता है और स्पेंड मीन्स खर्च करता है 11,000, सो बाकी का अमाउंट कहाँ गया, दैट इज मीन कि दैट डिफरेंस इज सेविंग, तो उसकी वो सेविंग मीन्स वो बचाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल फाइंड हियर सेविंग्स. सो फिर से समझिए एक बार, मंथली इनकम ऑफ श्री प्रसाद इज इक्वल टू रुपीज़ 18,200 एंड ही स्पेंड्स इन अ मंथ इक्वल टू रुपीज़ 11,700. सो हिज सेविंग्स इक्वल टू, सो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और यू कैन से स्पेंड वी विल सब्ट्रैक्ट, हम यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज सेविंग, वो हो जाता है सेविंग. तो सेविंग इज रुपीज़ 6,500. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन कि फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स. मीन्स आपको एक्सपेंडिचर खर्चा, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चा और सेविंग का रेशियो फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बोथ द वैल्यूज इन द फ्रैक्शन. दोनों ही वैल्यूज़ को एक्सपेंडिचर और सेविंग को हम फ्रैक्शंस में लिख देंगे, ठीक है ना. अब करना क्या है कि लिखना है हमें इक्वल टू, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, वही जो खर्चा था, सो 11,700. अब अपॉन में हम लिखेंगे सेविंग्स. सेविंग्स क्या है 6,500 हमने लिख लिया. नाउ बेटा डिवाइड बाय द सेम टेबल एज यू चेंज द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म, सेम टू सेम यू हैव टू डू. ऑलराइट, तो 0 0 कट बेटा. Now finally left 117 and 65. So both are divisible by 13 बेटा, दोनों ही वैल्यूज 13 से डिविजिबल हैं. सो 13 5 जा 65 and 39 जा 117. So finally we get the lowest term 9/5. So it is the ratio 9/5. इसको हम रेशियो में लिख लेंगे. ओके, सो हेयर बेटा वी फाउंड द रेशियो एक्सपेंडिचर इन सेविंग इक्वल टू 9/5. Now second point बेटा, we have to find the ratio of income and expenditure. अब इनकम लिखी है तो इनकम लिख देंगे, एक्सपेंडिचर लिखा है तो एक्सपेंडिचर. सो इनकम इज बेटा 18,200 अपॉन एक्सपेंडिचर इज मीन्स खर्चा कितना है 11,700. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 0 0 हम दोनों ही कट कर देंगे क्योंकि कट हो सकते हैं. नाउ बेटा इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 13. सो 13 9 जा 117 एंड 182 को हम करेंगे 13 1 जा 13. So from 18 beta 5 is left, so 5 comes to 2, so it becomes 52. Now 13 4 is 52. So finally left beta 14/9. अब 14/9 जो है वो सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है तो इट इज़ द लोवेस्ट टर्म. तो बेटा जब लोवेस्ट टर्म आ जाता है तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं, मीन्स सम कंप्लीट हो जाता है. सो फाइनली दिस इज़ द बेटा रेशियो 14/9 और हम कह सकते हैं 14:9. नाउ बेटा थर्ड स्टेप या थर्ड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. सो वेरी सिंपल बेटा, सेविंग्स हैं हमारी 6,500 हमने लिखी और इनकम है 18,200. वही 0 0 हमने कट कर दिया और ये भी बेटा क्या है आपका डिविजिबल है 13 से. 13 5 जा 65 एंड 13 14 जा 182. सो फाइनली वी गेट 5/14 इक्वल टू 5:14. ओके, नाउ बेटा कम्स क्वेश्चन नंबर 8. इन अ स्कूल द रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 5:4. बेटा आप क्वेश्चन जो है बुक से पढ़ लेंगे और
कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे भी, उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे सम, ठीक है ना। सो आप समझें यहाँ पे, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 5:4 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 540. सो वेरी सिंपल बेटा, यू हैव टू फाइंड number of boys and girls separately. In the question beta, total number of students is given and the ratios boys and girls given. You have to find number of boys and girls separately, अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल टू 5:4. ना बेटा हम क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 540. अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, डिवाइड करते हैं ना, अलग अलग हम बांटते हैं, वही सही है बेटा। तो हम करेंगे क्या कि हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सम ऑफ रेशियोज, ओके, इक्वल टू 5 + 4 = 9. सो अब बेटा बॉयज़ को अलग और गर्ल्स को अलग। देखो प्रोसीजर मैथड सब वही है, केवल यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन की सेइंग है, जो क्वेश्चन का टाइप ऑफ आस्किंग है कि कैसे वो पूछ रहा है, वो बस चेंज हो जाता है। बाकी सेम है बेटा, जैसे कि आपने रुपीज़ को 2 लोगों में डिवाइड किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, आपने बनानास को डिवाइड किया था, सेम टू सेम है। टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनको बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर देना है। सो वेरी सिंपल बेटा, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू, तो देखो रेशियो लिख लेंगे बॉयज़ का रेशियो है 5 एंड सम ऑफ द रेशियो है 9. सो इट बिकम्स 5/9 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 540. So divided 9 × 9, 9 × 6 = 54 equal and 0. So it comes 60. So 5 × 60 is equal to 300. So beta number of boys equal to 300. Now beta number of girls. So ratio of girls is 4. So 4/9 लिखेंगे, multiply 540. So 9 × 6 = 54 and 0. So what is 44 and 60? So 4 × 6 = 24 and 0. So that is mean number of girls equal to 240 girls. So if you want to recheck your answer, so you can do the sum of boys and girls. So 300 and plus 240, so total 540 comes. That is mean beta total student आ गए, तो आपका आंसर सही है. So beta this exercise is over and your homework is practice these sums and do question number 3, 4 and 6 of this exercise in your fair copy. Thank you. Have a nice day beta.